Hello students, welcome to another video lecture of Social Science Class 8. Today we are going to study a chapter from Political Science, very important chapter. This is third chapter of Political Science and the name is Why Do We Need Parliament? The topics which we are going to discuss in this chapter are following. So we are going to study these four topics in this particular chapter. First is why should people decide? Second is people and their representatives. Parliament and its composition. Who are the people in Parliament? In this chapter is divided into three lectures. In the first lecture we are going to cover these two topics. In the second lecture, we will be discussing the Parliament and its composition. And in the last lecture, we will just look at who are the people in the Parliament. So, without any further delay, let me start the chapter with the first topic. That is, why should people decide? So, to start, why should people decide? First, we need to understand the term democracy. So, democracy is the most famous form of government, widely accepted form of government, which says that it is a form of government where people elect their ruler. And the question is also, why should people decide? Why should people basically elect their rulers? Okay, here we are going to focus on that aspect. Democracy is made up of two words, demos and kratia. Demos means people and kratia means rule. So, democracy is people's rule. But why should people decide? That is the basic question. Like before, earlier forms of government were monarchy and dictatorship. In monarchy, king used to rule the whole country or whole territory. In dictatorship also, a person from the military background used to basically take care of the whole territory and their wish used to be the whole command for the nation. But later on, since monarchy and dictatorship became oppressive rules, so people moved to democracy. Okay. Now, in case of India, democracy has come after the end of British rule. So, the answer lies here only. Why should people decide? Because of the oppressive rule faced by the Indians during Britishers' regime. Okay. So, now let us see the little bit of the history that what was the situation of Indians at the time of Britishers. So, we will see the political scenario.
जैसे प्रेजेंट डे इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट है, वहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा होता है. इन द सिमिलर वे ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे पास इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स जो थे वही रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे एंड ऑल द डिसीजंस यूज्ड टू बी मेड बाय दोज पर्टिकुलर पीपल एंड देयर वाज नो से ऑफ कॉमन पीपल इन दैट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इंडियंस का कोई पर्टिकुलर से नहीं था. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने विशेस के अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे. देन केम अप एन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. 1885 में इंडिया में एक ऑल इंडिया लेवल की पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है एंड इनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके जो लीडर्स हैं उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जैसे दादा भाई नौरोजी, ये जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट उनका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं हुआ करता था. सो ऑल द लीडर्स यूज्ड टू फाइट फॉर देयर से कि हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लिया जाए सो दैट इट कैन हेल्प द कॉमन पीपल. बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. आईएनसी के थ्रू सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ. आफ्टर सेवरल फाइट्स, आफ्टर सेवरल स्ट्रगल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पास होता है, जिसमें बेसिकली जितने भी हमारे इंडियन लीडर्स थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ एंड एडवाइजरी मेंबर्स के तौर पर वो नॉमिनेट किए गए. तो इंडियंस को सिर्फ एक एडवाइजरी मेंबरशिप मिलना शुरू हुई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में. अब यहाँ से जो पूरी कहानी है वो स्टार्ट होती है कि जब हमारे यहाँ पे इंडियन लीडर्स को सिर्फ एडवाइस करने के लिए वहां पे रखा गया और उनकी एडवाइस पे कोई भी पहल नहीं की जाती थी, एक्चुअली कोई एक्शन नहीं लिया जाता था उनकी एडवाइस पे. यहाँ पर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, देन दे हैव कम अप विद दिस फीलिंग दैट पीपल शुड डिसाइड इन अ गवर्नमेंट. जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है उसमें जनता का ही राय सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए. तो सो बेसिकली जितना भी हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उसी से इंस्पायर हो करके वी हैव डिसाइडेड दैट डेमोक्रेसी शुड बी देयर इन द कंट्री एंड इन डेमोक्रेसी पीपल शुड डिसाइड. सो इन डेमोक्रेसी देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. There can be two forms of democracy. One is representative and another is direct democracy. So first let us discuss the direct democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर के और डिसीजन लेंगे. इट इज पॉसिबल इन स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोप, बट जहां पर बहुत बड़ी कंट्री की हम बात करें, जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसमें ऑलमोस्ट 2 डजन कंट्री ऑफ यूरोप कैन अकोमोडेट. तो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, वेरी ह्यूज कंट्री वेयर ऑल द सिटीजन्स कैन नॉट कम एंड सिट एट वन प्लेस एंड डिसाइड फॉर द डेमोक्रेसी. तो वहां पर फिर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं. मतलब हमारे चुने हुए जो नेता होंगे वो एक हाउस में जाकर के बैठेंगे और हमारे लिए डिसीजन लेंगे एंड दैट हाउस विल बी नोन एज पार्लियामेंट. ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ही पार्लियामेंट का रोल आता है. पार्लियामेंट का मतलब हुआ मेंबर्स ऑफ
Lok Sabha plus members of Rajya Sabha and President. So here the whole members of Lok Sabha, the whole members of Rajya Sabha and the President is going to represent the total population of a country, and they are going to decide on behalf of the whole citizens of a country. So this is a very brief explanation about why should people decide. People क्यों decide करेंगे? क्योंकि freedom struggle के दौरान ही हमने देखा कि people जो हैं वो बहुत oppressed हैं British rule में. So freedom fighters decided कि जनता के पास कुछ right होनी चाहिए, government में उनका say होना चाहिए. अब गवर्नमेंट में से हम दो तरीके से ले सकते हैं. एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं और डिसीजन ले. दूसरी जगह है कि आप अपने नेता को चुन करके एक हाउस में भेजें और वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके लिए डिसाइड करेंगे. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So next topic is people and their representative. अब अगर इतना बड़ा देश है जहाँ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करेगा? तो हमारे पास एक ही मीन्स है एंड दैट इज इलेक्शंस. Election is a means of choosing a candidate in a government. Okay. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी में कौन से लोग वोट करेंगे? राइट, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रूलर. सो द क्वेश्चन इज हु विल बी द पीपल हियर? कौन से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे? एक्चुअली डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही ये है कि जितने भी लोग डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं उन सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना है. सपोज करो गवर्नमेंट का कोई भी एक पॉलिसी आती है, उससे मैक्सिमम गांव के लोग अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उस डिसीजन मेकिंग में उन सारे गांव के लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है. ठीक है. अब इलेक्शन में यानी कि कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तो वोटर्स एंड देन कैंडिडेट्स. कैंडिडेट से मेरा मतलब है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं. वोटर्स कौन से लोग होंगे? वो सारे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, दैट मीन्स इंडियन सिटीजन्स, एंड ऑल दोज पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 18 years old. ओके, तो ये सारे लोग क्या होंगे? हमारे यहाँ पे वोटर्स होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. कैंडिडेट्स कौन होंगे? तो कैंडिडेट्स के लिए फिर अलग अलग क्वालिफिकेशन है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए ऑन एन एवरेज जितने भी लोग 25 years से अबव हैं और इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, कैन बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. ठीक है. अब इलेक्शंस कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं.
तो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं. फर्स्ट है जनरल इलेक्शंस. इलेक्शंस जो हैं वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट के लिए भी होंगे, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के लिए भी होंगे एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए भी होंगे. इंडिया में हमारे पास 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. और हर जगह पे सेम मेथड जो है वो फॉलो किया जा रहा है गवर्नमेंट को चुनने का, दैट इज इलेक्शन. जनरल इलेक्शंस जो है वो नॉर्मल जब एक टेन्योर गवर्नमेंट का खत्म होगा और नए टेन्योर के लिए नई गवर्नमेंट जब बनाई जाएगी, दैट विल बी टर्म्ड एज जनरल इलेक्शंस. ये हर कंट्री में अलग अलग टेन्योर के बाद होता है. इंडिया में आफ्टर एवरी 5 years जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड. ओके. अब अगर हमारे यहाँ पे जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. जनरल इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. सपोज करो पूरे इंडिया में इलेक्शंस होना है, तो सबसे पहले इंडिया कंट्री को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है पॉपुलेशन की बेसिस पे हम जो इंडिया है उसके अलग अलग रीजन्स को डिवाइड कर देते हैं और हर रीजन का पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए. जैसे गोवा एक छोटा स्टेट है तो वहां पे मे बी सिर्फ 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है वहां पे 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बन जाए. ठीक है, तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करते हैं, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने मेंबर्स को खड़े करती हैं और जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वहां पे वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा. दिस इज जनरल इलेक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज मिड टर्म इलेक्शन. अगर कोई सरकार हमने चुनी 5 साल के लिए, लेकिन 5 years में ही ड्यू टू सम रीजन अगर वो सरकार डिसॉल्व हो गई या जनता के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो गवर्नमेंट जब डिसॉल्व हो जाती है बिफोर 5 years, तब जो इलेक्शंस होते हैं दैट इज मिड टर्म इलेक्शन. एज द नेम सजेस्ट, जो पूरा टर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके मिडिल में ही इलेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, दिस बेसिकली हैपेंस जब हमारे गवर्नमेंट में मेजॉरिटी नहीं होती है. सपोज करो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है, तो डेफिनेटली सारी पार्टी ने मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म किया होगा. और इसमें से कोई भी एक पार्टी अगर बीच में ही पूरे 5 साल के टेन्योर के बीच में ही अपना सपोर्ट हटा देती है, तो हमारी जो सरकार है वो डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन देश बिना सरकार के तो चलेगी नहीं, इसीलिए हमें मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं. ओके. Now, what is by-elections? By-elections happens in case of accidental death of a particular authority. जैसे अगर हमारे PM का पोजीशन है एंड हमारे कोई भी PM हो वो by accident or due to some reason if he dies एक्सीडेंटली उनके 5 year का टेन्योर के कंप्लीशन के बीच में, तो हमें उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इलेक्शंस करवानी पड़ती है. जैसे लाल बहादुर शास्त्री का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. वो रशिया गए थे एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एंड वहां पे उनका देहांत हो जाता है. तब दिस वाज एन एक्सीडेंटल डेथ, बट अ कंट्री कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वापस से इलेक्शन हुआ, दैट इज बाय इलेक्शंस. ओके, सो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव में यही है कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनेंगे, तो इलेक्शंस के थ्रू चुनेंगे. क्यों इलेक्शंस के थ्रू चुनेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी में कंसेंट ऑफ पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अप्रूवल ऑफ पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जितने भी लोग डिसीजन मेकिंग से अफेक्ट हो रहे हैं उन सबको इन्वॉल्व करवाना है. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू.